Hello students, so today we are going to start with a new chapter, that is alternating current. Okay, now जैसे हम लोग को पहले मिला था types of current, either current with respect to the direction of flow, either current can be conventional current or current can be electron current, yes or no. Similarly with respect to the magnitude and the change of direction of current, with respect to the magnitude and the change of direction of current, we can say that current can be of two types. Either current can be direct or current can be alternate. Okay, so current can be of two types. Either current can be direct current, which we call DC, or current can be alternating current, which we call as AC. That means अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं between current and time, between current and time, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है that the magnitude of current with respect to time is constant. The magnitude of current with respect to time is constant. Okay, so this is called what? Direct current. ये हो गया direct current. You can see here the direct current is unidirectional. Okay, uni मतलब one, direct current is unidirectional. So ये हो गया direct current. But alternating current मैंने क्या बोला? जिसका magnitude keeps on changing and direction reverses periodically. तो देखो यहां पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है. यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड के साथ साथ करंट भी रिवर्स हो गया. यहाँ पे फिर करंट रिवर्स हो गया, यहाँ पे फिर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया. ओके, सो अगर हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड एंड दिस टाइप ऑफ डायरेक्शन अगर हम लोग करंट को कंपेयर करें तो करंट को हम लोग दो तरह का बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट. एंड विथ रेस्पेक्ट टू द पहले जो था with respect to the direction of flow of charges. Okay, not direction, sorry मैंने गलत बोला होगा, direction नहीं, with respect to the flow of charges. करंट का दो टाइप होता है. If we consider the flow of positive charge, then current becomes conventional current. If we consider the flow of negative charge, then current becomes electron current. Okay, so alternating current कौन सा हो गया? ये वाला. So what is alternating current? The type of current whose magnitude keeps on changing, the type of current whose magnitude keeps on changing and direction reverses periodically. Direction reverses periodically is called alternating current. Is called what? Alternating current. यहां पे ये हो गया हाफ साइकिल और ये पूरा एक होता है कंप्लीट साइकिल. This is a half cycle and if you take this half and this half then this is one complete cycle. Okay, so ये हो गया हम लोग का alternating current. Now if you take a coil, अगर एक coil को लोगे ना, if you take a coil and place the coil in a magnetic field, okay, or if you take a coil, okay, and rotate it in a magnetic field, अगर वो coil को एक magnetic field पे रख के rotate करोगे, then there will be an induced EMF in the coil. और ये जो इंड्यूस ईएमएफ होगा ये किस तरह का इंड्यूस ईएमएफ होगा? ये होगा एक ऑल्टरनेटिंग इंड्यूस ईएमएफ. सो इफ यू टेक ए कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटेट इट, देन एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, एंड दिस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय द रिलेशन एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी. एप्सिलॉन ये ऑल्टरनेटिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका रिलेशन है. Epsilon equal to epsilon naught sine omega t. Okay, now if we consider that we are applying this EMF, we are applying this EMF to a circuit having resistance R. इसी EMF को, alternating EMF को हम लोग एक सर्किट पे अप्लाई कर रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस R है. Okay, so then by Ohm's law we know that, can I write E equal to IR? So therefore can I write I equal to E by R
Now what is E? That means what is epsilon? So I can write epsilon equals to epsilon naught sine omega t by r. So I equals to epsilon naught by r into sine omega t. तो देखो epsilon by r क्या था? I. So epsilon naught by r मैं क्या लिख सकता हूं? I naught equal to sine omega t. This I represents what? Alternating current. ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करने की वजह से सर्किट पे जो हम लोग को करंट यहाँ पे मिल रहा है इन दिस इक्वेशन आई, ये करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट. एंड व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय आर इज कॉल्ड द पीक करंट. इज कॉल्ड द पीक करंट. पीक करंट मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, तो इसको फटाफट से कॉपी कर लो. तो देखो जो ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन क्या मिला हम लोग को? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसको याद रखना. डन. नाउ देखो, हाँ, द टाइम टेकन बाय ऑल्टरनेटिंग करंट to complete one cycle of its variation, to complete one cycle of its variation is called its time period. Is called its time period. So time period of AC क्या होता है? The time taken by alternating current to complete one cycle of its variation. मतलब ये one cycle. और देखो, हाँ, इस तरफ क्या था? करंट ना. तो ये एक्सिस से जो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट गया इन आइदर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में जो मैक्सिमम गया, ये डायरेक्शन में जो मैक्सिमम गया, इसी को हम लोग बोलते हैं पीक करंट, जिसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था बाय आई नॉट. ओके, so the time taken by alternating current to complete one cycle of its variation is called time period. Now we know that omega equal to 2 pi by t, where what is omega? Angular frequency. ये सब चीज तुम लोग को पहले मिला हुआ है. Angular frequency. So यहां से therefore time period कितना मिलेगा? 2 pi by omega. इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया. मिलेगा. And फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाय टाइम पीरियड. 1 बाय टाइम पीरियड. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाएगा? 1 बाय ओमेगा बाय 2 पाई, है कि नहीं? 1 बाय टाइम पीरियड. सो 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा ऊपर गया तो ये हो गया ओमेगा बाय 2 पाई. नाउ frequency is defined as the number of cycles completed by alternating current in the number of cycles completed by alternating current per second. The number of cycles completed by alternating current per second is called frequency of the alternating current. Okay? So यहाँ पे हम लोगों को ये मिल गया फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन और ये मिल गया टाइम पीरियड का इक्वेशन या फॉर्मूला, जो भी बोलो. So therefore जो करंट था ऑल्टरनेटिंग करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई टी. 2 पाई बाई टी, ये कैपिटल टी है, इंटू टी, है कि नहीं? और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. 1 बाई टाइम पीरियड क्या था? 1 बाय टाइम पीरियड था फ्रीक्वेंसी. सो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं. तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको हम लोग ये दो इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. सो आई होप अप टू दिस मच क्लियर. ओके, now next let us see average value
of alternating current over a complete cycle. ओके एक कंप्लीट साइकिल में जो ऑल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू होता है वो कितना होता है, एवरेज जो वैल्यू होता है वो कितना होता है. सो ऑन एन एवरेज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन वन कंप्लीट साइकिल इज 0. ये चीज याद रखना एंड वी विल प्रूव दैट थिंग नाउ. ओके देखो ना, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर दोनों इक्वल है ये इसको कैंसिल कर देगा तो ऑब्वियसली 0 होगा, है कि नहीं. तो इसी चीज को चलो अभी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं. वी हैव टू प्रूव दिस वन, सो लेट अस प्रूव दिस वन. सो वी नो दैट alternating current through a circuit is given by I equals to I naught sin omega t, where what is I naught, where I naught is the peak value of alternating current. ये तो हम लोग को मालूम है ऑलरेडी, है कि नहीं. Now let us consider that a small charge dq flows through the circuit for a small amount of time, say dt. That a small charge dq flows through the circuit for a small amount of time dt. So we know that चार्ज का जो फॉर्मूला होता है q इक्वल टू क्या होता है it. Yes or no? So can I write therefore dq equals to I dt. I can write therefore the total charge. हम लोग को किसके लिए निकालना है, हम लोग को निकालना है फॉर वन कंप्लीट साइकिल. ओके ये वाला पार्ट हो गया, मैं रफ कर रहा हूं. सो द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ओके, ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dq equals to integration I dt, one complete cycle, that means 0 to t. टाइम पीरियड, वन कंप्लीट साइकिल का टाइम पीरियड क्या था, t ना, अभी तो हम लोगों ने देखा. सो 0 टू t. सो इंटीग्रेशन dq मुझको क्या मिलेगा, q, I का क्या था वैल्यू, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t, और साथ में क्या है dt. नाउ I नॉट इज ए मैक्सिमम वैल्यू विच इज कांस्टेंट, so we can take it out. So q equal to I naught is a constant, ये बाहर आ गया. देखो अगर हम लोग ये सोचे जो पीक वैल्यू है इन एवरी डायरेक्शन इट इज कांस्टेंट. ओके स्मॉल टाइम के लिए जो चार्ज भी है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने स्मॉल टाइम लिया dt. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया. तो यहाँ पे क्या रह गया, इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा t dt. नाउ ये क्या होता है, देखो what is integration sin theta minus cos theta. इंटीग्रेशन sin theta minus cos theta, तो इसका sin ओमेगा t का क्या होगा, माइनस cos ओमेगा t. बट यहाँ पे क्या है ओमेगा t, तो एस पर फॉर्मूला, एस पर रूल, ये ओमेगा फिर से क्या होगा, डिवाइड होगा, ये ओमेगा फिर से डिवाइड होगा. सो वी कैन राइट q इक्वल टू I नॉट इंटीग्रेशन 0 टू t इंटीग्रेशन sin ओमेगा t dt क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, सॉरी ये इंटीग्रेशन चला जाएगा ना, डिवाइडेड बाय ओमेगा. एंड व्हाट आर आवर लिमिट्स, 0 टू t. क्लियर अप टू दिस मच. ओके सो ये माइनस को बाहर ले आओ. सो q इक्वल टू ये माइनस और ओमेगा को बाहर ले आओ, तो ये हो गया माइनस आई नॉट बाई ओमेगा. अंदर क्या रहा हम लोग का, कॉस ओमेगा टी. तो टी के जगह सबसे पहले क्या आएगा, कैपिटल टी, माइनस कॉस ओमेगा, ये टी के जगह भी क्या आएगा 0. दैट मीन्स वी हैव पुट द लिमिट. सो q इक्वल टू माइनस आई नॉट ओमेगा. अभी देखो हाँ, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई टी इंटू टी. तो टी टी कैंसिल, माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 0. So q equal to minus I naught by omega cos 2 pi minus cos 0. Okay, so q equals to minus I naught by omega cos 2 pi
माइनस कॉस 0, साइन 90 क्या होता है 1, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, सो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई इज 1, द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज 1, सो देयरफॉर वी गेट Q equals to 0. So the total charge that flows through the circuit over one complete cycle is 0. So therefore the average value of alternating current over one complete cycle, okay, we know that Q equal to IT, so I average equals to Q by टाइम पीरियड, टोटल साइकिल का टाइम पीरियड T था, Q कितना मिला 0, so 0 by T, therefore I average equal to 0. So the average value of alternating current over one complete cycle is how much? 0, hence shown. Okay, तो यहां तक कंप्लीट कर लो अच्छे से. Okay, now let us see. ये तो हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल. नाउ लेट अस सी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल. Average value of AC over half cycle. So that was average value of AC over one complete cycle. This is average value of AC over one half cycle. Okay. So same, we know that the value of alternating current flowing through a circuit at any instant of time can be given by I equals to I naught sin omega t. Where what is I naught? The peak value of AC. Okay. If we consider that a small amount of charge is flowing through the circuit for a small time, so I can write therefore dq equal to I dt. So the total charge flowing through the circuit over the half cycle, integration dq equal to integration I dt. अभी क्या हो गया हाफ साइकिल, so टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा t by 2. So dq I will get q, ये हो गया इंटीग्रेशन 0 t by 2 I equals to I naught sin omega t dt. Okay, I naught बाहर लेके आओ, so q equal to I naught integration 0 t by 2 sin omega t. So sin omega t dt. So q equals to I naught integration 0 t by 2 sin का क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 to t by 2. सो ये माइनस और ओमेगा बाहर लेके आते हैं हम लोग, सो माइनस आई नॉट बाय ओमेगा. नाउ t by 2, सो कॉस ओमेगा, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी इंटू टी के जगह क्या आएगा t by 2. सो दिस t कैंसिल, 2 कैंसिल. ओके, और यहां पे क्या बचेगा माइनस कॉस 0, है कि नहीं. तो ये वाला पार्ट में रफ कर दू. सो यहां पे 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या Q इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट बाई ओमेगा. यहां पे बचा कॉस पाई माइनस कॉस 0. सो यहाँ पे माइनस है, Q इक्वल टू माइनस आई नॉट, ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, कॉस 0 का वैल्यू हो गया -1. तो ये हो गया Q इक्वल टू माइनस टी ऊपर चला जाएगा टी आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू -2. तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 2 कैंसिल, है कि नहीं. तो Q का वैल्यू कितना मिलेगा, Q का वैल्यू मिल गया I naught t by pi. So therefore the average value of current over half cycle I average equal to क्या होगा Q by टाइम पीरियड. अभी टाइम पीरियड कितना है t by 2. So Q के जगह हम लोग क्या लिखेंगे I naught t by pi डिवाइडेड बाई 2 by t by 2, मतलब ये हो जाएगा 2 by t. तो ये t कैंसिल, तो बचा कितना
Therefore, I average equal to 2I naught by pi. So what is the average value? Average value को mean value भी बोलते हैं. Average और mean value of AC over half cycle, it is 2I naught by pi. Okay, so ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, I average equal to 0.637 I naught. That means if you divide 2 by pi, you will get 0.637 I naught. Similarly, we can show that EMF equals to 0.637 epsilon naught. ओके, अगर ये प्रूफ करने थे, यहां तक प्रूफ करके सिमिलरली वी कैन शो दैट ये लिख देना. ओके, सो आई होप यहां तक क्लियर है. थैंक यू.